Hello everyone, welcome to my podcast, The Art of Conversation, episode 8. Today I'm really excited because I have a very multi-talented person on my podcast. He is none other than Karan KZ. He is a writer, singer and producer. और भी बहुत कुछ जो हम इनके बारे में नहीं जानते और आज जानेंगे. So Karan, thank you so much for coming on this platform and giving me your precious time. So tell me about yourself to me and my audience that we don't know about you. First of all, thank you so much, Aditi, for having me on the My show. pleasure. About myself, मैं जलंधर से हूँ, पंजाब. Oh, that's amazing. I'm from Chandigarh too. And मैंने अपनी हाई स्कूल इंडिया में किया, जलंधर में, and Okay. उसके बाद मैं कनाडा आ गया. I know I don't look like a software engineer, but I am a software engineer. So how come from a software engineer to singer and a writer? Software engineering, I'll tell you. इंडिया में, as we all know, बेटा हुआ तो Engineer. बेटी हुई तो डॉक्टर. Okay. Same with me. ठीक है, बट वहाँ से ट्रांजिशनिंग टू म्यूजिक इट वाज नॉट दैट काइंड ऑफ केस, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से अचानक से मुझे कोई म्यूजिक का टेस्ट नहीं आया. आई हैव बीन डूइंग म्यूजिक माय होल लाइफ. मैं बचपन Really? से गाता आ रहा हूँ. माय मॉम इज म्यूजिक एचओडी इन माय स्कूल. Oh, that's So amazing. it's in my blood. It's in- गाना सिंगिंग इज इन माय ब्लड. म्यूजिक इज इन माय ब्लड. तो बचपन से इन स्कूल आई यूज्ड टू टेक पार्ट इन कॉम्पिटिशंस, टैलेंट हंट कॉम्पिटिशंस. तो वहाँ पर आई यूज्ड टू बी वेरी कम्पिटिटिव. दैट्स आल्सो Yeah. अ फैक्ट. तो वहाँ से आई started my musical journey. My mom used to teach me music. I used to sing. My mom used to teach me instruments. So Okay. the first instrument I learned that was harmonium. Oh, that's तो amazing. उसके बाद मैंने गिटार सीखा, कीबोर्ड सीखा थोड़ा सा. एंड हाई स्कूल के बाद, एज आई टोल्ड यू, मैं फिर कनाडा आ गया. एंड कनाडा में आके मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री की. एंड उसके बाद आई फेल्ट अ रिलीफ कि नाउ आई हैव डन समथिंग एंड आई कैन फॉलो माय हार्ट, व्हिच इज म्यूजिक. Always been music. Yeah, Karan, and even I too admire those people who come from a very different background and very different field of their journey and then follow their heart. So um, having a chat with you and sharing your experience is gonna be too much fun on this podcast for It is. sure. So Karan, tell me something that you think is really important in your life to succeed. To succeed, I think, my personal opinion, I think you have to have some kind of purpose in your life. Okay. Whether you are doing music, या फिर आप एक्टिंग कर रहे हो, या फिर आप कोई भी प्रोफेशन कर रहे हो, Yeah. if you are following your heart, not a Okay. corporate job. अगर आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हो and you want to be successful in that, I think you have to have a purpose, a reasonable, a meaningful purpose. For example, मेरे लिए, I want to do music for myself. My purpose is to get famous. My purpose is to leave an impact on the community. Okay. I have a yak jamming group in Edmonton. It's Okay. free, right? Okay. So उसका purpose यही है कि we all come together twice in a month, Okay. and we just jam. Oh, We that's network amazing. with each other. हम नए लोगों से मिलते हैं. Hmm. And someone who is struggling in his music, Okay. वो अगर किसी और से मिलता है, who can help him, Yeah. this is, I think, what the community needs. Yeah. So I think आपको एक purpose होना चाहिए, and when you have a good cause for your passion, I think the God helps. Yeah, definitely. God always helps. Yeah. So He is the behind for Exactly, everything, yeah. for sure. Yeah, this is like something really good to have a purpose for something. Because if you are doing something and something and something without any purpose, you will reach nowhere. So having a purpose for your passion, that is a good thing to Yeah. succeed for sure. Exactly. ओके करण, सो आप ने बताया कि आप बचपन से ही म्यूजिक को फॉलो करते हो और आपका पैशन भी रहा इसमें. तो कोई बचपन की ऐसी कोई याद है जो बहुत दिल से जुड़ी हो, म्यूजिक से भी रिलेटेड हो? एक मोमेंट है, जब मैं काफ़ी छोटा था. सो हमारे स्कूल में टैलेंट एंड कॉम्पिटिशन्स होते हैं, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं. तो मैंने उसमें पार्ट लिया था, एंड उसमें मैंने एक गाना गाया था, तारे ज़मीन का, मेरी माँ. ओह. तो जब मैंने वो गाना गाया, जब मैं स्टेज से उतर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि सारे रो रहे हैं.
एंड Really? मैं फिर अपने स्टाफ जो हमारे टीचर थे, हाँ। मैं उनको जाके पूछ रहा हूँ कि सारे रो क्यों रहे हैं, एंड मैं हम्म। ऊपर देख रहा हूँ वो टीचर भी रो रहा है। तो फिर मेरे को मम्मा ने बताया कि एवरीवन गॉट इमोशनल आफ्टर यू sang द सॉन्ग, क्योंकि एक वो मूवी भी ऐसे की है, वो गाने का एक मीनिंग भी ऐसे का है, एक वो जो बच्चा है वो अपनी मदर से Mom दूर हो could, रहा होता हाँ। है, एंड वो सेम गाना एक मी एज अ किड गा रहा है, तो आई थिंक इट हिट्स डिफरेंट। एंड जब मेरे को वो रियलाइज हुआ, तो एक इट्स अ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मी इन माय मेमोरी। Yeah, that you'll never forget. और I can't. होता है कि when you are a small kid और आपकी एक छोटे से एक्ट से इतने सारे लोग इम्पैक्ट हो जाएं, तो that Exactly. also like give you a very good memory. Exactly. Definitely, I totally believe that हमारी बचपन की कुछ ऐसी यादें जरूर होती हैं जो हमें कभी हम भूल नहीं सकते। मुझे ऐसा लगता है कि हम कितना भी अचीव कर ले, बट जब भी हम वो वाला मोमेंट याद करेंगे तो बिल्कुल। जो खुशी मिलती है वो किसी और चीज में नहीं मिलती बिल्कुल है। बिल्कुल स्पेशल होता है वो। स्पेशल होता है, बिल्कुल। उसको कोई बीट नहीं कर नहीं कर सकता। सकता। कभी भी आपसे कोई पूछेगा ओके व्हाट वाज योर फेवरेट मोमेंट, हमेशा वहीं पर बचपन का ही आता है। बचपन का ही याद बिल्कुल। आता है। बचपन हमेशा ना बहुत ब्यूटीफुल होता है। लाइक आई Exactly. बिलीव कि मैं मानती हूँ आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं अपनी लाइफ में अकॉर्डिंगली मैं अच्छा कर रही हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है इफ समबडी विल आस्क मी व्हाट यू वांट बैक इन योर लाइफ, आई विल से बचपन। बिकॉज उस टाइम पे हमें ऐसा होता है कि वी वर नॉट रनिंग बिहाइंड थिंग्स, हम सिर्फ उठते थे, खाते थे, स्कूल जाते थे, सोते थे, कोई टेंशन ही नहीं थी। जब बच्चे होते तो कहते हैं कि बड़े होना है, बड़े हो गए तो तो कहते हैं बचपन चाहिए। सो इट्स लाइक नॉट गेटिंग सेटिस्फैक्शन। सो Yeah. टेल मी कि लाइफ में क्या चीजें हैं जिससे आपको सेटिस्फैक्शन फील होती है या जो करके आपको सेटिस्फैक्शन फील होती है? आई थिंक मेरी डेली लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट तो म्यूजिक है। जब Okay. तक कुछ म्यूजिक का पार्ट मेरी डेली लाइफ में नहीं हो रहा, मेरे को तसल्ली नहीं मिलती। Okay. Whether it's playing guitar, whether it's just bathroom singing, कुछ भी। Okay. Apart from that, I like to work out. I like to talk to my friends. मुझे फैमिली से बात करना बहुत अच्छा लगता है। I'm very family oriented guy. Okay. And इसके अलावा I have a very deep connection with my God. Oh, that's amazing. So whenever I get time, I won't say कि ये daily basis पे है, but whenever I get time, I try to connect myself with my God. That's amazing. So, like, although God is one, but do you believe in one particular God? Yeah. So I am actually very inspired from Lord Krishna. Oh, that's beautiful. So like एक तो होता है कि आप किसी को मानते हो ऐसा, but it's for me it's inspiration. Okay. Even for my musical journey, he plays an instrument, he plays flute. I play guitar. Okay. Because I think music is one of the ways to heal. Yeah, that is, I totally agree. So आपने जैसे बताया कृष्णा जी से आपको इंस्पिरेशन मिलती है, तो म्यूजिक के लिए आपको इंस्पिरेशन कृष्णा जी के अलावा कहाँ से मिलती है, और आपको मेन इंस्पिरेशन म्यूजिक के लिए कहाँ से आई? आई थिंक मेन तो मेरी मॉम से ही आई है। Okay. बिकॉज मैंने बचपन से उनको गाते हुए देखा है, उनको हारमोनियम बजाते, इंस्ट्रूमेंट्स बजाते देखा, वो सितार भी बजाते हैं। तो मैं बचपन से फॉर एग्जांपल जब मैं घर पे होता था तो मैं देखता होता था वो गा रहे हैं, वो इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, तो वो गा रहे हैं, वो इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, पर मुझे कैसा फील हो रहा है जस्ट सिर्फ सुन के, राइट? ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगता था, बिकॉज अगेन एज आई सेड म्यूजिक इज वन ऑफ द वेज टू हील अ सोल। तो वही मुझे लगा कि व्हाट इफ आई कैन डू द सेम फॉर पीपल, राइट? बिकॉज मेरा पर्पज सिर्फ एक मनी वाइज या फिर फेम करना नहीं है, ऑफ कोर्स है, टू बी ऑनेस्ट, बट आई वांट टू लीव एन इम्पैक्ट ऑन द कम्युनिटी। या दैट्स सी, मुझे ऐसा लगता है हम पैशन के साथ साथ अगर हम कम्युनिटी का उसका, मैं ये नहीं कह रही हूँ डेफिनेटली एवरीबडी वांट्स फेम एंड एवरीथिंग मनी, बट हल्का सा इम्पैक्ट भी अगर उसकी वजह से अगर हम कम्युनिटी पे अगर डालते हैं तो इट्स रियली गुड। एग्जैक्टली, बिकॉज we should be giving back something to the community. For example, if I'm doing this podcast, maybe tomorrow I will get viral, or maybe I will be getting a lot of money and collabs, but if any one single person or get any good thing or experience or learn something from my podcast, I would be really really happy about that. Someone told me in India back, like I have a friend, and like friend's husband told me, Aditi, why you stopped doing your podcast? Because I was not feeling well, really well before this time. So he was like, you were doing really well.
trust me, those words are more than Exactly. anything. Exactly. Like when somebody say, oh, you are doing really well, you get more motivation towards that. Maybe I'm not giving a lot in monetary terms right now towards society, but कुछ तो दे रहे हैं, कुछ तो दे रहे कुछ हैं. तो So दे रहे हैं, and कुछ देना is I think is more than a lot of people that are doing right now. exactly. क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ भी नहीं दे रहे. हाँ, बहुत They are सारे busy in their life, they are busy in their own self. own self. बिल्कुल. Yeah. But इन सब चीजों से उठ And के Karan, I don't know whether you agree with me or not. कल को मुझे कोई कहे ना that I can just live my life on my own, just think about myself only and just not think about any other at all. I can't live that. exactly. So मुझे नहीं पता कि जो लोग जीते हैं और उनमें भी मुझे ऐसा लगता है कि that is their choice. They are not doing Right. anything wrong Right. in that. But if I am choosing this, I am really happy about it, and sometimes I really feel little proud too कि कुछ तो कर रहे हैं. I think this depends on the situation, to be honest. I'm Okay. not against कि अगर if someone is selfish, I don't know if it's the right word to use, No, or not we cannot say selfish. We can self-centered say या फिर self-centered, and it's about choices. choices. And अगर कोई choosing your own happiness is also not a Exactly. wrong thing. But I think यहाँ पर situation की बात आती है, it's very subjective. For example, if a guy का कोई family background नहीं है, he doesn't have family, Yeah. and he chooses to live alone, you know, he doesn't want to get married, anything, nothing, because उसके decision से कोई harm नहीं हो रहा. Yeah. But अगर कोई बंदा है and उसके घर पे उसके बूढ़े माँ बाप हैं, and तब जाके वो decide कर रहा है कि मैं बाहर जाकर अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ, and he's gonna leave his parents behind, I feel it's not good. It's not good. जहाँ पर आपकी I think responsibility बनती है, and if your decision किसी को impacting others, harm नहीं कर रहा negative way में, you do whatever तो you वो want. तो जैसे बोलते हैं ना कि अगर आपका झूठ बोला हुआ अभी अगर किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा रहा तो उसे झूठ नहीं कहते हैं. बिल्कुल. ओके करण, तो हर किसी की लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जिसके बाद हमारी लाइफ 360 डिग्री से चेंज हो जाती है. सो आई रियली वॉन्ट टू नो, और मेरे को ये ऐसा लगता है, इमेजिनेशन है कि एक आर्टिस्ट की लाइफ में तो वो ज़रूर रहता है. तो इज इट लाइक ऐसा आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ है जो हमारी ऑडियंस को आप शेयर करना चाहेंगे? आई थिंक कोई भी, नॉट कोई भी, बट आई थिंक मेरे लिए जो मैं ये आर्ट कर रहा हूँ, ये मैं तब तक नहीं स्टार्ट कर सकता था जब तक मेरे को एक ठोकर ना लगी होती जिंदगी में. ओके. यू नो, और मैं अकेला नहीं, ये सारी दुनिया को कोई ना कोई स्ट्रगल कर ही रहा है किसी ना किसी चीज़ से. तो ऐसे ही मेरे लाइफ में भी एक पॉइंट आया था, एक फेज आया था जहाँ पर आई वाज वेरी डाउन, यू नो, आई वाज एट माय लोएस्ट पॉइंट, एंड जो हर एक टीनेज वाला एक स्टोरी होता है वही थी. तो आफ्टर दैट इंसिडेंट आई, यू नो, उस फेज के जाने के बाद वो पेन को मैंने छोड़ा नहीं. ओके. तो जो गाने लिखने स्टार्ट किए या फिर जो म्यूज़िक कंपोज करना शुरू किया या फिर एक स्टोरी टेलिंग थ्रू म्यूज़िक करनी शुरू की, दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द पेन, सो दैट मेरे जैसे लोग जो वो गाना सुन रहे हैं, दे कैन रिलेट टू देयर स्टोरी, और उनको सुन के लगे कि ये तो मेरे साथ भी हुआ है, ये दिस इज, तो ये मतलब ये फेज से तो मैं भी जा रहा हूँ. क्योंकि जब मैं वो फेज से जा रहा था, आई डिडंट हैव दैट मच सपोर्ट. आई हैड अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन टू टेक केयर ऑफ मी. आई ऑफ कोर्स घर वालों से तो हम बात नहीं कर सकते, बट मेरे को पता कैसा फील होता है जब आप बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पर होते हैं ना. तो मैं यही चाहता था कि अगर कोई मेरे ऐसे के गाने सुनेगा तो उसको ये ना लगे ही अलोन, उसको ये लगे कि अगर इसके साथ हुआ है तो मेरे साथ होगा, तो और अगर ये इतना अचीव कर सकते तो मैं भी कर सकती. Exactly. तो वो सबसे पहला गाना कौन सा था जो उस टर्निंग पॉइंट के बाद आपने लिखा था? उसके बाद सबसे पहला गाना मैंने लिखा था जब से, जो मैंने तो रिसेंटली दो रिलीज लाइनें किया. बताएंगे हमारी ऑडियंस ओके, आई विल टेल यू छोटा सा अबाउट जब से. तो ये गाना स्टार्ट होता है अबाउट लव. ये एक्सप्लोर करता है कि लव क्या है, यू नो, हाउ यू फील व्हेन यू आर इन लव, यू नो. तो ये स्टार्ट होता है कि मन्नतें की लाखों मैंने तब तुझे पाया था, है ना. तो ऐसा ही फील होता है जब आप प्यार में होते हो. तो इन बिटवीन ये गाने के वी एक्सप्लोर द हार्ट ब्रेक स्टोरी.
जब आपका दिल Okay. टूट जाता है, Okay. जब आप खुदा से खफा हो जाते हैं, जब आप खुद से खफा हो जाते हैं। Hmm. इसकी टैगलाइन भी यही है कि जब से तू जुदा हुआ तब से मैं खुद से खफा हुआ। Oh, that's so beautiful. तो जब हम एंड अप्रोच करते हैं ये गाने का, तब तक वो जो इंसान है वो हील हो चुका होता है, उसको रियलाइज हो चुका होता है कि अगर जो इंसान उसे छोड़कर गया है, Hmm. अगर वो उससे प्यार करता तो वो छोड़ के जाता है। तो एंड में लाइन आता है कि अब मुझसे तू जुदा रहे, इश्क तेरा भी बेवफा रहे, फिर टूटेगा तू और तेरा दिल, पर तेरे लफ्जों में ना मेरा रहे। Wow. I must tell you, like, this is really, really nice. And as you said, everybody can relate to this. बिल्कुल। At some point of time, everybody went through this situation and everybody can relate to this song. And guys, जब से मैंने अनिकेत को जाना है, मैंने इनके सारे गाने सुने हैं, जब से लेके माया से लेके, मैं सब गानों की डिटेल्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। प्लीज लिसन, दे आर सो ब्यूटिफुली कंपोज्ड एंड रिटन बाय हिम, एंड इनफैक्ट इन्होंने ही गाए हैं। उसमें ऐसा फील होता है कि हम जैसा ही कोई है, क्योंकि सी आज बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं एंड दे डेफिनेटली डू फॉर मूवीज एंड एवरीथिंग, बट artists like you actually start to feel very original and to feel other your emotion plus people's emotion around you more. बिल्कुल कभी किसी दोस्त के साथ बैठ के किया होगा, कभी किसी बिल्कुल फैमिली के साथ बैठ के किया होगा, तो हम लोग ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। तो या दैट इज रियली गुड टू नो। ओके करण, जैसे कि आपको पता है कि हम अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ लर्न करते हैं, तो टेल मी वन लेसन दैट यू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस that you want to tell me and my audience. आई थिंक एक लेसन जो मैं सबसे शेयर करना चाहूँगा वो ये होगा कि नेवर नॉट फॉलो योर पैशन। कभी डाउट मत करो कि मुझे अपना पैशन फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जस्ट गो Okay. फॉर इट। इसलिए नेवर नॉट फॉलो, ऑलवेज फॉलो, Always follow. वेदर टुडे। अगर आपको लगता है ठीक है, अगर आप अभी पोजीशन में नहीं हो तो कल करो, कल कल नहीं कर सकते तो आप एक साल बाद करो। हम्म, अपने आप जस्ट, अगर सर्कमस्टेंसेस नहीं है, हम्म, है ना, कि ऑफ कोर्स सबकी फैमिली बैकग्राउंड अलग होता है, मनी वाइज एवरीवन इज डिफरेंट, सबकी लाइफ अलग होती है। अगर आपको लगता है आपकी लाइफ अलाउ नहीं कर रही है आपको राइट नाउ आपका पैशन फॉलो करने के लिए, तो अपनी लाइफ चेंज करो। बट एट द एंड ऑफ द डे फॉलो योर Follow पैशन, फॉलो योर हार्ट। This is so beautiful because I am relating it to it. Like, मेरे को ना ऐसा लगता है कि earlier I was just living my life. Now I'm enjoying my life because I'm following my passion. मुझे बहुत अच्छा लगता है content creation और videos बनाना, and I used to do dance a lot. Now I'm making videos on dance, so it's good. मतलब पहले I was just doing it for fun now, but I'm actually following it कि मैं कुछ कर रही हूँ, that I'm getting work from this. I'm meeting new people like you, getting a lot of experiences from people. So I also agree on 100% on this. Just follow your passion. आज कल परसों हर आर्टिस्ट की लाइफ में ना एक कोई ऐसा पल होता है जब आपको बहुत कोई एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट देता है जिससे आपको लगता है यू आर एक्चुअली डूइंग राइट। सो do you have anyone remember that who gave you some compliment or some feedback on your work? I do have. तो एक बार it's around few years back now. So मैं इंस्टाग्राम पर अपने गाने डालता हूँ, कवर्स बॉलीवुड गानों की या कुछ भी। तो I received a message from someone from India. That was a long paragraph message. तो उन्होंने इसमें यही लिखा था that she was insomniac and वो काफ़ी like महीनों से सो नहीं पाते होते। Okay. तो उन्होंने आगे लिखा था but after watching your reel या after listening to your song I was able to sleep that night. So beautiful. And she explained it further, but जब मैंने ये पूरा मैसेज पढ़ा it was so heartfelt, it was so wholesome. And that moment I realized that I have some capability to heal something in someone.
दैट्स रियली अमेजिंग कि किसी को नींद नहीं आ रही है और वो आपके गाने सुन के सो रहे हैं, एंड दैट्स लाइक वेरी बिग थिंग टू गेट अ कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम बिल्कुल। पीपल. इवन आई वांट टू ऐड वन, लाइक आई जस्ट गॉट टू रिमेंबर, जब मैंने अपना कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था तो एक आंटी थे, उन्होंने मुझे स्पेशली मैसेज किया कि मेरी बहू अभी भी कनाडा में शिफ्ट हुई है और वो बहुत डिप्रेस्ड रहती है, और स्पेशली मैंने उनको तुम्हारी प्रोफाइल भेजी है बिकॉज यू ऑलवेज पुट योर थिंग्स वेरी स्माइली, एंड तुम डांस करती हो, तुम अलग अलग एक्टिविटीज करती हो, तो आई फेल्ट वेरी गुड. आई वाज लाइक कि उनको अच्छा लग रहा है, और वो कहते हैं वो उसके बाद माई डॉटर इन लॉ इज ऑल्सो फीलिंग रियली गुड. एंड तो मैंने उनको यही मैसेज किया, मैंने कहा थैंक यू सो मच, और अगर आपकी डॉटर इन लॉ को कभी भी मुझसे कनेक्ट करना है, एंड इफ शी नीड एनीथिंग शी इज मोस्ट वेलकम. तो ये छोटी छोटी चीजें ना बिल्कुल आपको बहुत मोटिवेट भी मोटिवेट करती करती हैं, हैं, और एग्जैक्टली. आपको लगता है कि दैट यू आर डूइंग दिस समथिंग इज हाउ यू रियलाइज दैट यू आर डूइंग गुड, गुड. एंड एट द एंड ऑफ द डे दिस इज व्हाट मैटर्स, कि आप अच्छा Yeah. कर रहे हो या बुरा कर रहे हो. यू नो लाइक अगर आप किसी का बुरा करोगे इन एनी वे, आपको रात को अच्छे से नींद नहीं आएगी. नहीं आएगी. नहीं आएगी. जब नहीं आप अच्छा करोगे, आप उस दिन सोकर देखना कितना मजा आएगा. कितना मजा आएगा. नहीं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है. और मुझे ऐसा लगता है कि द लीस्ट, मैं हर किसी को बोलती हूँ, आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू, द लीस्ट यू कैन डू टू अदर पीपल टू बी काइंड एंड टू बी लिटिल गुड. आपके कॉन्सेप्ट में बहुत मजा आया. थैंक यू सो मच. इट वॉज रियली अमेजिंग. आई रियली एंजॉयड इट. गाइज, आई अटेंडेड हिज कॉन्सर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड मैं बता रही हूँ आने वाले साल में जितने भी कॉन्सर्ट्स होने वाले हैं, मैं अगर टोरंटो में हुई, आई एम गोना अटेंड फॉर श्योर. आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, यू हैव टू इन्फॉर्म मी few Ahead, months of before. course, of course, of course. and Special tickets for her. oh, thank you so much. I have the lifetime membership for your concert for sure. And I really wish Karan कि आने वाले concerts बहुत हिट रहे जैसे कि हमारा ये वाला रहा, और आप बहुत ज़्यादा सक्सेस, जो भी आपने बताया कि जैसे कि आपकी लाइफ का पर्पस है टू गिव बैक टू द सोसाइटी समथिंग, और जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, आई रियली विश कि आपको आने वाले टाइम में वो अचीवमेंट्स मिलें, और आप दोबारा इस पॉडकास्ट पे ज़रूर आओ. बिल्कुल, बिल्कुल. फिर अपनी और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के Of साथ. course, of I course. don't know, I never said to anyone else earlier कि आप दोबारा ज़रूर आए, but I really want you to come again to share more experiences. बिल्कुल, because I think experiences are never less to share. Yeah. जितने ज़्यादा शेयर करो, जितनी ज़्यादा उससे हेल्प ही होगी लोगों की. Exactly. So the main purpose for this podcast, Karan, is to share experiences. Right. So और सबसे best part कि I want everyone to come here. Right. I don't go for followers. I don't go for your fame. I want you to go for as a person. Like बिल्कुल. if some person tomorrow coming, hey, I learned so much through the life, but I don't even have an Instagram account. I'm Yeah, fine with that. exactly. I really want to share that story on my platform, because through which I will get raw experiences. Exactly. So much for coming on this platform and supporting me in this, and I really appreciate that, because you know what, I tell to everyone, time is the most expensive thing that you can give it to the other person, and you gave your precious time. Thank you so much for that. No, thank you. Thanks to you, Aditi, for having me on the podcast and for giving me a chance to be a part of something very positive. You know, after this podcast, I actually feel good. You know, after this conversation, I actually feel good. आपसे बात करके, you know, and your views, and you know how we are similar on contributing to the society. Yeah. And I think a lesson जो सबको लेना चाहिए, यही लेना चाहिए. You know, as you said, be kind, do good to people, and इससे ज़्यादा ना इससे कम ज़रूरत ही नहीं है. Exactly. आप काइंड रहो, आप अच्छा करो, एंड यू नो मैं खुद में थोड़ा सा भूल गया था, बट आफ्टर दिस पॉडकास्ट मुझे वापस से रियलाइज हुआ ये सेम ही चीज. Oh, So I thank you think so much. again, That really means thank a you so lot. much for spreading positivity to the society and the community. And That's a really big compliment, Karan, and I also want to add little bit here. Guys, एक होता है ना कि when you meet someone for the first time, you are unable to get that much from the person, but आपसे मिलके और कुछ ही देर में बातें करके like लगा कि आप अगर एक स्ट्रगल करते हो तो you can achieve something. बिल्कुल. और
it doesn't matter from which background you come from, you still, if you have the passion for something, you can follow that, and you should Exactly. follow that. You should follow You that, should as I follow said. that. So guys, thank you so much for watching my podcast, और I hope आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो, and please do like, share and comment on my podcast. Thank True you so guys, much. do like, share and subscribe and comment as well. अपने opinion share करो and share it as much as possible, क्योंकि you never know ये किसके लिए एक lesson बनेगा, किसके लिए inspiration बनेगी, and किसके लिए just एक positivity का तरीका बन जाएगा. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you.